So we'll create a login form. So where will I make the HTML file? In the web app. Right click over here, make a new HTML file. I'll call it as login.html. Okay. And here, what will I enter? I'll make a form tag and I'll ask the user to enter username, text, and name equals to T1. And your new line, BR, and I'll ask user to enter a password. Input type is, you can take text or you can take password also as the input type. This will hide the text what you write. Okay. It's up to you. And name equals to T2. And then let's take input type equals to submit. And name equals to S1. And whatever you want to write on that, that is called as the value property. Value equals to login. Now we are going to log in, right? So this is a simple form I have made. When I hit on the submit button, it will go to the action. So I will say action as login. And the default method is get. You can still write it over here if you want to. We have two methods, see over here. There's a method called post also. I'll show you the difference between them. Okay. So now what do I need to do? Who will tell me? Now what is the next step after the HTML file is made? Is anyone? We'll have to go and configure the web XML, and that will be in the web INF. And how do we do that? Just copy this servlet and third mapping pair, copy this and paste it. And now what is our URL pattern? Copy it from here. And after the slash, you paste the pattern. So this login, I am linking to any string, okay? You can link it to any string. You can link it with the same string with a capital like this if you want. And now copy this line number 24 and replace it with line number 19. They are just same. These two lines are same. And this will route to which servlet then? This will route to the login servlet. So this servlet should be there with us now. So copy this and go to your default package, right click, new, and make a servlet. Okay, so go to the class name and write the class name login servlet. Now, whichever servlet you make, you have to be aware which method you are used in your HTML. Method is get, so look for the do get method. So you have to look for the do get method over here. See this. Okay. So look for the do get method and you have to write the code over here. So what is the first thing you have to write? You don't need to by heart now. You also have written it in the first servlet.
you can copy that code over here. These 2 lines you can copy. In fact, you can copy these 4 lines also if you all want, and come and paste it over here, because they will be, most of it is same. These two will be the same always. Now we are getting the username, and that is already in string. So no need to convert to integer. So I can say string username, and I'm getting the password from there. So whatever comes in a text box is by default string type. So no need to convert to string because it is already in string type. Directly you can use it, string password. Okay. And if my username and password is same, I will greet the user. So I'll say if my username dot equals the password, equals the method, right? If they are both are same, I'll welcome the user. So I'll show alert, and I will say login successful. Okay, double quotes, right? We show in double quotes. And if you want to write this, then you have to write it using the out. So what will you do? Out dot print. Whatever code you want to write, login successful. Okay. If it is not, we'll say else out dot print login not successful. Okay, let's do a save all. Okay, now you all tell me, if I run my application now, which file will start? If I right click over here and say run as run on server, it will start the welcome file. Which is the welcome file? 1.html. But now I want to start login.html. So I will change my welcome file. Okay. So you have to be aware of the configuration. And now when you will right click and run as on server, let's see what happens. Okay, are you able to see the login screen, guys? So now if I say Apple is my login, my password also is Apple. Okay. So now as a end user, if you have made this software, you feel very happy that you have encrypted the password, right? Can anybody see my password? No. And now when I go to login, it's just printing me that message over here. I was expecting a login alert form to open. So it's just printing me that message. Login successful. So now can you all tell me what was my password? So where did you get to see it? You see over here in the URL. In the URL, it is adding my password over here, correct? So the get adds the password in the URL.
Get will add this password in the URL. If you want to make it more secure, then you go with post. So post doesn't send the data as a part of the URL. Post sends the data as a part of a body, request body. So if I come to my application now, and now instead of get, I use which method to send? Post. Now what changes do I have to do now in the application? In my login servlet, what changes do I have to do? Write the code where? In the do post. So what they have done is they have done a redirection over here. Now the request will come to do post, and do post will send that request to do get. So no need to change anything. It will handle this. So the request will actually come to do post now, but do post will now call do get, and this code will execute. Now my only reason to show you all is, if you will observe now, that it will not show you the username and password on the screen now. Let's start. I hope. Now let's start the application. Okay, and you will see post will not show the username and password as a part of the URL. So these are two HTTP methods, get and post. Going forward, you will see and learn a lot of other HTTP methods also. Is my browser screen visible? Yes, sir. Okay, so I enter Tom. I enter the password. Password is not visible. I log in. Oh, Do you all see the password over here? yeah. It just shows the action. Nothing is shown over here, right? So if I want to send sensitive data like my credit card pin or my ATM pin or my bank account password, will I use get or post? To send sensitive data, we will use post. We will not use get because get shows the data in the URL. Okay. Okay. Now, once the login is successful, I want to route to a page, let's say home page. So I make in the web app, I say new, and I make a new HTML page, and I say home page dot HTML. So after my login is successful, I want to route to this page and say welcome to ABC Bank Net Banking. Okay, welcome to ABC Bank Net Banking. I want to this I will show only after the login is successful. Now, once this is successful, it should go to which page? Home page, right? So for that we have a request dispatcher. So from one page to other page, if you want to go, is my word screen visible? Is the document visible to you all? Yes, sir. So for that we have a request dispatcher. What we have? So I will make an object of the request dispatcher over here. Okay. So leave this request dispatcher RD. Okay. And I will use the request dot get request dispatcher. This is the syntax of how you make this object. Okay. And now to which file do you want to route it? To which HTML file you want to send it to? Home page. So write that. So if you're writing the name of a HTML file, give slash and give the full name. Okay. And then we will send the request forward. So we'll say rd dot
forward like this. Okay. So if you want to route from one page to other page, use request dispatcher. Okay. Now I will not print this. This is a sufficient proof that login has been successful. If I see the home page means login has been successful. Let's save it. Go to the console, stop the application, and let's rerun the application. Okay. Now I enter any password. QWERT is my username. QWERT is my password. As I log in, it says welcome to ABC Net Banking. Means successful. If I would have entered wrong password, if I would have entered this login, it would say login not successful, right? Or you can say incorrect username and password. What could we have said? Bad credentials. Bad credentials. So let's save it. Now as I've made changes in my servlet, see it's reloading. It has reloaded at 9:55, means changes have taken effect. If the reloading has done, like if you see a message over here that whatever time you did the save, at that time it has done the reloading, then no need to stop the server. Then let's come and check over here. Bad credentials, right? So now bad credential means I want to again route back to the login form, correct? I want to give him one more opportunity to enter the username and password, correct? So after the bad credentials, I will open the login.html again, correct? Guys, are you getting what I'm trying to say? Yes, sir. What am I trying to say? अगर क्रेडेंशियल्स इनकरेक्ट है तो यहाँ से यूजर को चॉइस मिलना चाहिए फिर से लॉगिन पेज को एंटर करने के लिए क्रेडेंशियल्स। देखो ये मेरा लॉगिन पेज है, ये मेरा लॉगिन पेज है, करेक्ट? सही है. So if the credentials which he has entered are bad, will it successfully log in? If he enters bad credential, will it log in successfully or not? No. No. So what will it show him? Bad credentials. You all are seeing my paint screen, right? Yes, guys. Yes, sir. तो बैड क्रेडेंशियल होने के बाद तुरंत वापस फिर क्या खोलना है मुझे उसके अंदर? लॉगिन पेज। तो उसको बोलते हैं इंक्लूड. तो ये आरडी के दो मेथड है, एक फॉरवर्ड और एक इंक्लूड. तो फॉरवर्ड मतलब नेक्स्ट पेज पे चला जाओ, और इंक्लूड मतलब जो भी आपने लिखा है इधर उसको आप समझो रेड में लिख दिए. रेड में आपने कैसे लिखे थे उस दिन? यहाँ लिखा था रेड में. फॉन्ट ट्राई थे, फॉन्ट कलर. तो इसको रेड में लिख देंगे. बैड क्रेडेंशियल्स, फॉन्ट को क्लोज कर देंगे. और फिर यहाँ पर किसको, कौन से पेज को ओपन करना है मुझे वापस? कौन से पेज को ओपन करना है? लॉगिन। तो इसके लिए फिर रिक्वेस्ट डिस्पैचर का एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे और वापस किसको ऐड कर देंगे इधर, और वापस rd डॉट फॉरवर्ड कर. ठीक है, ये दो मेथड है उसके. तो अभी सेव करता हूँ. अगर रीलोडिंग हो जाता है आपका तो आपको स्टॉप करने की जरूरत नहीं है. देखो 9:55 को हुआ था लास्ट, उसके बाद अभी देखो हो गया 9:50 को रीलोडिंग. ठीक है, तो रीलोडिंग हो जाए तो फिर आपको जरूरत नहीं है. तो नाउ इफ यू विल सी, I do just refresh. I enter ABC ABC. What will it say? Yes, guys. लॉगिन सक्सेस।
वेलकम टू एबीसी ब्रेड बैंकिंग, राइट? वो मैंने दिखाया नहीं ना लॉगिन सक्सेसफुल, मैंने डायरेक्टली बता दिया, वेलकम दिखा दिया बस, ये लाइन मैंने कमेंट कर दिया है ना। एंड इफ आई एंटर द रॉन्ग पासवर्ड देन ABC, and if I enter wrong password now, bad credentials. and again the login form will open over there. क्या हो गया? Why is it not showing bad credentials? लॉगिन फॉर्म तो ओपन कर रहा है, बैड क्रेडेंशियल्स क्यों नहीं दिखाया? अगर आउटपुट एज पर एक्सपेक्टेशन नहीं आए तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लो कि भाई क्यों नहीं आया। कंसोल पे, कंसोल तो खाली है, तो बैड क्रेडेंशियल्स क्यों नहीं आ रहा? AS नहीं, वो राउट कर रहा है वापस लॉगिन के ऊपर, तो मुझे ये दिखाना था ना, बैड क्रेडेंशियल्स दिखा के फिर राउट करना था। ओके, फॉरवर्ड कर रहा है वो, क्या करना था अपने को? इंक्लूड करना था, क्या करना था? Include. उसी, तो ये जो डेटा है इसके अंदर वो डेटा इंक्लूड, फॉर्म को इंक्लूड करना है, फॉरवर्ड नहीं करना है, ठीक है? सेव किया मैंने, रीलोड हो गया। अब देखो डिफरेंस क्या आएगा। ABC, गलत पासवर्ड डालता हूं मैं, दिख रहा है? वो डेटा दिखाने के बाद उस पर वो इंक्लूड कर रहा है फॉर्म को। फॉरवर्ड मीन्स गो टू द न्यू फॉर्म, इंक्लूड मीन्स write something and on that you can add the other form also. So current data plus the form, that is called include, and a separate new form you want to open, go to forward. Got it? Yes, sir. Yes. So I'll just save this. Okay, अब आपको मैंने एक लेट्स से ये जो one.html है, ये समझो हम इधर एक प्लेयर का नाम लेते हैं, किसका भी नाम लेते हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पर एक लेबल लगा दिया, एंटर नेम ऑफ योर फेवरेट प्लेयर, ठीक है? अब उसने ले लिया, इस T2 की जरूरत नहीं थी। अब जब वो सबमिट करेगा तो कौन से जाएगा एंड पॉइंट पे? शिवम पे। शिवम को कहाँ राउट किया है हमने? शिवम विराट से लिंक हुआ है, विराट कहाँ गया है? ऑड इवन सेलेक्ट पे, तो इधर आ गए। ओके, अब वो जो नेम आया है, ठीक है, तो उसको करना पड़ेगा क्या? स्ट्रिंग में कन्वर्ट की जरूरत नहीं है। यस गाइस, टेल मी। जरूरत नहीं है, राइट? ये निकाल रहा हूँ पूरा मैं। Yes, sir. तो अभी आपका नेम किस में आ गया? हम्म, नेम कौन से वेरिएबल में आ गया? T1. T1। ओके, अब आपको ऐसा कोई, देखो हमने रिक्वेस्ट डिस्पैचर से जो भी राउट किया, ये विद इन एप्लीकेशन किया, फॉरवर्ड भी किया, तो कौन से पेज को फॉरवर्ड किया? जो विद इन एप्लीकेशन था, है ना? होम पेज हमारे एप्लीकेशन के अंदर ही था ना? Yes, sir. और इंक्लूड भी किया तो कौन सा पेज इंक्लूड किया? जो हमारे एप्लीकेशन के अंदर था। ओके, अब मुझे ऐसा कोई पेज ओपन करना है जो मेरे एप्लीकेशन के बाहर है। लेट से मुझे जो है ना, गूगल पे गया मैं और मैंने समझो विराट सर्च किया, ठीक है? विराट सर्च करता हूँ सिर्फ मैं, विराट, चलो विराट कोहली कर लो, तो उसका गूगल पेज ओपन होगा, दिख रहा है? Q इक्वल्स टू विराट, ये दिख रहा है ये? तो इसने गेट, इधर इधर गेट यूज हुआ है, दिख रहा है क्या? मैंने जो सर्च किया Yes, है sir. वो एज अ, मुझे दिख रहा है इधर,
यूआरएल में कि मैंने क्या सर्च किया। तो मैं ये पूरा उठाता हूँ यूआरएल। अब ये जो यूआरएल मैंने पिकअप किया है ये मेरे एप्लीकेशन के मेरे उसके बाहर का मेरे एप्लीकेशन के बाहर है। अभी जो मैंने पिकअप किया है गूगल से उसका गूगल का यूआरएल, वो मेरे एप्लीकेशन का पार्ट है क्या मेरे एप्लीकेशन के बाहर का पार्ट है? बाहर का पार्ट है। तो अगर आपको किसी बाहर के जाना है यूआरएल पे तो उसके लिए है रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। क्या है? सेंड रीडायरेक्ट। और आप यहाँ पर फिर कोई भी यूआरएल को रीडायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर तो वो किस पे जाएगा? हमेशा विराट कोहली पे जाएगा, है ना? क्यू इक्वल टू विराट कोहली। अगर मैं इसको यहाँ पर ब्रेक कर दूं क्यू इक्वल टू को, और फिर इसको मैं अपना नेम कॉन्कैट कर दूं जो मैंने वहां से लाया है, तो अब मैं जो भी नाम एंटर करूंगा वो उसके गूगल पेज पे चला जाएगा, है ना? समझ में आया तुम लोग को ये कैसे किया? मैंने गूगल से आके ये लिंक ले लिया सर्च वाली, और क्यू इक्वल टू कॉन्कैट कर दिया नेम, और नेम में कहाँ से मंगा रहा हूँ? T1 टेक्स्ट बॉक्स से, यहाँ से। ठीक है, अब ये कौन सी फाइल है जो रन होगी? 1.html। और हमारी डिफॉल्ट फाइल कौन सी कर दी हमने? लॉगिन। तो अगर आपको डायरेक्ट 1.html रन करना है शुरू में, डायरेक्ट उसी पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो 1.html पे और रन एज। पहले स्टॉप करना पड़ेगा सर्वर को, अगर नया फाइल खोलना है तो स्टॉप कर दो सर्वर को, उस फाइल को ओपन करो, क्योंकि अगर मैं रन करूंगा एप्लीकेशन को तो किसको ओपन करेगा वो? वेलकम फाइल को, जो कि कौन सी है? लॉगिन। पर मुझे अभी उसके फाइल कौन सी फाइल को ओपन करना है? 1 को। तो डायरेक्ट उसी को ओपन, राइट क्लिक, रन एज, रन ऑन सर्वर कर सकते हैं। ठीक है, अभी वो क्या आ गया? एंटर नेम ऑफ योर फेवरेट प्लेयर। ठीक है, अब किसने लिख दिया? रोहित शर्मा, और सबमिट पे क्लिक किया तो उसके चला जाएगा पेज के ऊपर। आ गया? अरे बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? यस सर। तो हम हमारा खुद का एक सर्च इंजन बना सकते हैं फिर। देखो ये मेरा खुद का इंटरनल सर्च इंजन हो गया जो वहाँ राउट कर रहा है। तो जो भी आप यहाँ लिखोगे आप उसके पेज पे चले जाओगे। आ गया? तो ये 3 चीज समझ में आ गई? फॉरवर्ड, इंक्लूड और सेंड रीडायरेक्ट। विल समराइज दैट फॉर मी नाउ। सर वो लास्ट वाला बताइए। ये अलग है सेंड रीडायरेक्ट। क्या? देख, हाँ यस। ये मैंने एक इनपुट बॉक्स बनाया T1 का, और कौन से एक्शन पे राउट कर दिया? शिवम पे। शिवम कौन से सर्वलेट से मैप्ड है? ऑड इवन सर्वलेट से, है ना? तो इसमें आ गया, मैंने वो नाम रीड कर लिया यूजर से, नेम में ले लिया, और गूगल का यूआरएल कॉपी कर लिया मैंने। तो गूगल क्या करता है हमेशा? क्यू इक्वल टू के बाद में जो आपने सर्च किया है दिखाता है, दिख रहा है इधर? क्यू इक्वल टू आपने जो सर्च किया होगा। ठीक है, तो आप अगर आपने सर्च किया होगा आमिर खान, तो वो दिखाएगा क्यू इक्वल टू के बाद में आमिर खान, है ना? दिख रहा है? यस सर। तो मैंने फिर क्या किया, वो स्ट्रिंग वही लॉजिक को मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। तो क्यू इक्वल टू ले लिया, और नेम हम लोग कहाँ से लेंगे? जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स से आया है T1 से, वो कॉन्कैट कर दिया। और चूंकि ये लिंक मेरे एप्लीकेशन के बाहर की लिंक है, तो आई विल यूज सेंड रीडायरेक्ट। include and forward I will do within my application, okay, but forward I will do outside. अरे बात समझ में आ रही तुम लोगों को? ओके। अब इसमें है ना एक और काम कर सकते हैं कि ये हम लोग या तो HTML को राउट कर सकते हैं, या हम लोग एक जो हमारा यूआरएल पैटर्न है उसको भी राउट कर सकते हैं। शिवम क्या है? यूआरएल पैटर्न है ना, तो उसको भी हम लोग भेज सकते हैं। सो जैसे कि अगर लॉगिन सर्वलेट के अंदर अगर मैं रिक्वेस्ट डिस्पैचर कर दूं, और यहाँ पर मैं लिख दूं
होम पेज नहीं लिखूं और लिखूं शिवम, क्या लिखूं मैं? अगर फाइल का नाम है तो स्लैश देना है, और अगर एक्शन का नाम है तो स्लैश देना नहीं है। शिवम एक्शन है ना, शिवम किसका एक्शन है? तो फिर क्या 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 ओपन करेगा वो लॉगिन सक्सेसफुल के बाद में? देखो, लॉगिन सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद वो क्या ओपन करेगा? शिवम। तो शिवम, ये क्या है? ये पेज है क्या, ये यूआरएल है? लॉगिन क्या है, एचटीएमएल पेज है का यूआरएल एक्शन है? HTML पेज शिवम क्या है? एक्शन तो वो जाके सर्च करेगा। URL URL नहीं, शिवम, शिवम कहाँ है? शिवम तो एक्शन है ना। शिवम क्या है? एक एक्शन है ना। अगर आप पेज दे रहे हो तो आपको स्लैश देना पड़ेगा पेज के पहले। अगर डॉट एच टी एम एल पेज दे रहे हो तो आपको स्लैश देना पड़ेगा। अगर आप एक्शन दे रहे हो डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं आप, शिवम। सो अभी मैंने रिक्वेस्ट डिस्पैच कर दिया किसके किसके पास? शिवम। शिवम क्या है? मेरा एक्शन यूआरएल पैटर्न है, एक्शन है ना। तो फिर वो किस पे राउट कर देगा उसको, कौन से सर्वलेट को भेज देगा? और ऑड इवन सर्वलेट पे क्या है अभी? ये यहाँ पर आ जाएगा वो, पर वहां पर कोई टी1 मिलेगा ही नहीं, उसको कोई टी1 मिलेगा ही नहीं वहां पर, पैरामीटर टी1। तो एक काम करते हैं, ओके देखो ऐसा करते हैं अभी। लॉगिन जब हम करेंगे ना तो हम लिखेंगे विराट कोहली। देखो मैं तुमको दिखाता हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। इसका वेलकम फाइल क्या है? वेलकम फाइल क्या है? लॉगिन तो अगर मैं अभी राइट क्लिक करके रन करता हूँ, पहले कंसोल पे आके पहले स्टॉप कर दो, रीरन कर रहे तो अगर मैं रन करता हूँ एप्लीकेशन को, रन एज, तो कौन सा पेज खुलेगा? लॉगिन खुलेगा, ठीक है। अब समझो, इस फ्लो को समझो। अब यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ विराट कोहली, मेरा यूजर नेम है। तो पासवर्ड भी सेम देना पड़ेगा क्योंकि हमने लॉजिक वही लगाया है ना। अगर मैं कुछ और पासवर्ड दे दूँ तो क्या बोलेगा ये? बैड क्रेडेंशियल्स, एक्सीडेंट और वापस वहीं राउट कर देगा, है ना। तो अब जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स 1 में जो नाम लिखा है वो क्या लिखा है? टेक्स्ट बॉक्स वन का डेटा क्या है? विराट कोहली। विराट तो कोहली वो जा रहा है लॉगिन सर्वलेट में। तो टी1 के अंदर आ गया यूजर नेम और पासवर्ड आ गया, करेक्ट। अब वो होया लॉगिन सक्सेसफुल, करेक्ट। उसके बाद में वो कहाँ फॉरवर्ड कर देगा? शिवम तो शिवम पे जब वो फॉरवर्ड कर देगा तो शिवम बोले तो ये वाला, और वो फिर कहाँ जाएगा? और सर्वलेट पे, और वहां से वापस वो गेट पैरामीटर टी1 ले लेगा। तो लेट्स ट्राई टू चेक इट इफ इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। विराट कोहली पे गया और देखो लॉगिन करते ही विराट कोहली के डैशबोर्ड पे आ गया। अगर मैं लॉगिन करते वक्त लेता रोहित शर्मा, ठीक है, तो मुझे पासवर्ड भी सेम देना पड़ेगा, करेक्ट। मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी गलती ना हो, और पेस्ट कर लिया, और लॉगिन करते ही कहाँ चला गया वो? उसके होम पेज पे, ठीक है। तो ये कैसे हुआ? ये लॉगिन से मैंने कौन से एक्शन पे गया? लॉगिन पे, ठीक है। फिर वो जाएगा लॉगिन वाले सर्वलेट को राउट कर देगा, है ना। लॉगिन सर्वलेट पे आ गए,
जो मेरा T1 आया है रिक्वेस्ट से, उसमें क्या आया है? विराट कोहली। T2 से क्या आया है? विराट कोहली। दोनों इक्वल हो रहे हैं? यस और नो? यस। तो वो कहाँ राउट कर रहा है फिर उसको? शिवम। शिवम। तो शिवम क्या है? एक एक्शन है, तो वो सर्च करेगा एक्शन शिवम को इधर। मिल गया उसको, तो कहाँ भेज देगा उसको वो? ऑड इवन सर्वलेट पे, है ना? और ऑड इवन सर्वलेट क्या कर रहा है फिर? तो T1 से क्या आया था? विराट कोहली आया था ना, तो विराट कोहली के उस पे वो चैनल पे भेज दे रहा है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो इज, आप फॉरवर्ड के अंदर या तो कोई फाइल का नाम दे सकते हो या कोई एक्शन का नाम भी दे सकते हो। फाइल का नाम दे रहे हैं तो स्लैश लगाना पड़ेगा, एक्शन दे रहे हो तो बगैर स्लैश के भी चल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? और थर्ड था रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। वो आप अगर अपने एप्लीकेशन के बाहर का कोई यूआरएल है, कोई पेज आप एक्सेस करना चाहते हो, तो फिर आपको रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट और वो पेज का पूरा पाथ देना पड़ेगा। अगर उसमें पैरामीटर्स है तो हम लोग पैरामीटर्स चेंज करके अपने पैरामीटर्स भेज सकते हैं। यस और नो? अगर समझो मुझे भेजना था amazon.com से, तो amazon.com का एड्रेस क्या है? जो अपनी amazon जो साइट है उसका क्या है? ये उसका यूआरएल है ना? क्या है? amazon.in क्या है? अब अगर लॉगिन सक्सेसफुल के बाद में मुझे amazon.in को भेजना था, तो मैं क्या करूँगा? ये कोड कॉपी कर लूँगा, डायरेक्टली क्या कर दूंगा, सिर्फ बगैर कोई पैरामीटर्स पास किए साइट का नाम लिख देंगे। भाई जब सक्सेस हो जाए तो डायरेक्टली कहाँ भेज दो? किधर? amazon.in पे। अभी आप कुछ भी नाम डालो, रोहित शर्मा डालो, विराट कोहली डालो, वो कहाँ जाएगा? ओके, सेव रील, ओके रीलोड हो गया, ठीक है, रीलोड हो चुका है। सो लेट्स गो। ओके, फर्स्ट सर्वलेट। ओके, अपने को रन करना है ना, या रीलोड तो हो ही गया है, इधर आ गया। अब आप कुछ भी डालो, ABC डालो, सेम लिखना पड़ेगा। लॉगिन करते का चला जाएगा वो? अमेजोन पे चला जाएगा। तो ये जो मेरा रिडायरेक्ट था वो सिंपल यूआरएल था। इस यूआरएल में मैंने खुद में कुछ पैरामीटर्स पास करके भेजा है। आई एम गेटिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल दीज थ्री गाइस। Purpose of that concept. Today I understand the purpose of this three concepts. Okay, so today you understood clearly, right? What is forward, include, Yes, and yes, yes. redirect. Okay, nice, very good.